to deliver the keynote address. कर लेती हूँ। उड़ीसा सीएम साहब बस पहुँच रहे हैं 2 मिनट, तो उसके बाद बोलूँगी। स्वागत करा लीजिए। स्वागत करना चाहेंगे माननीय मुख्यमंत्री जी का। स्वागत है श्री मोहन चरण मांझी जी का, ऑनरेबल चीफ मिनिस्टर ओडिशा। And we now hand over to Ms. Debashri Mukherjee to kindly give the keynote address. Am I audible? Honorable Chief Minister of Rajasthan, Honorable Union Minister Jal Shakti, Honorable Chief Ministers of Odisha and Tripura, Honorable Deputy Chief Ministers of Chhattisgarh, the Karnataka Deputy Chief Minister is on his way, he will join us shortly. Himachal Pradesh, Honorable MOS, Ministry of Jal Shakti, and all the ministers looking after different aspects of water who are gathered here with us today. My friends and colleagues who are fellow travelers and fellow warriors in the water sector. A very good morning to all of you, और आप सबको ये जो दूसरा सम्मेलन है वाटर मिनिस्टर्स का, उसमें बहुत बहुत स्वागत है. Thank you everybody for coming here today. It is an honor for me, मेरे लिए बहुत सम्मान के विषय है, to stand before you today to set the context for the second Water Ministers Conference, a journey that we started 2 years ago. The fact that almost every state and union territory of the country is represented here, mostly by their honorable ministers, is testimony to the importance of water. कितना critical हो गया है water और water management, particularly in the context of the uncertainties of climate change. ये आप लोगों का जो political leadership है इस देश का पानी के मामले में, ये सब आप यहाँ सम्मिलित हुए हैं, इसीलिए this shows कि ये पूरे विषय को कितना ज़्यादा हमें political support और तवज्जो मिल रहा है. We are looking at better water management, which is critical towards our journey towards a Viksit Bharat, एक सशक्त, संपन्न और समावेशी भारतवर्ष के लिए. Good water management, effective water management के बगैर हम विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त नहीं कर सकते. We will not be able to reach the goal. 2 years ago, when we organized the first Water Ministers Conference, we did it with a sense of trepidation. थोड़ा डर के किए थे कि किस तरह से होगा, कैसे रिसीव होगा, किस तरह से हम लोगों को रिस्पॉन्स मिलेगा. और क्योंकि हमें पता है कि वाटर काफ़ी हद तक पॉलिटिकल है, लेकिन हमें ये भी पता है, वी आर अवेयर दैट वाटर इज अ स्टेट सब्जेक्ट. तो राज्य में, स्टेट्स में अगर वाटर मैनेजमेंट बेहतर ना हो, if we don't make major progress in terms of water management in the states, then the country cannot progress. In this, we are truly the sum of the efforts of the states. We are also aware that while there are institutions that address water disputes, अगर दो राज्यों में पानी को लेके झगड़ा होता है, तो we can set up tribunals, we have the Interstate River Waters Dispute Act. लेकिन जहाँ कोऑपरेट करना है, जहाँ कोलैबोरेट करना है,
उस तरह के स्पेसेस, उस तरह के इंस्टीट्यूशंस की थोड़ी कमी है। तो हम ये समझते हैं कि ये जो वाटर मिनिस्टर्स कॉन्फ्रेंस है, ये एक सेफ स्पेस है जहां हम एक दूसरे से सीख भी सकते हैं, एक दूसरे के जो कंसर्न्स हैं उसको समझ भी सकते हैं। So therefore, this is a means of looking at collaboration and better cooperation on water management. The first water conference succeeded beyond our expectations. We had 20 honorable ministers from across the country. इस बार हमने अपना expectation exceed कर दिया उस मामले में. And thank you to all of you for that. And the presentations जो वहाँ पर हुए थे were focused very strongly on the work done by the states. The government of India was in listening mode. कि स्टेट्स में किस एरिया में क्या बढ़िया काम हुआ है वो शेयर हुआ, स्टेट्स ने अपना बढ़िया काम को शोकेस किया। तो और बहुत पॉजिटिव एक एटमॉस्फेयर में कि प्रॉब्लम्स क्या है, हमारे सारे इकट्ठा क्या प्रॉब्लम्स है, उसको किस तरह से हम सॉल्व करें, उस एक अप्रोच को लेके हम लोग आगे बढ़े थे। कॉन्फ्रेंस के आखिर में जो कॉन्फ्रेंस का जो 22 रिकमेंडेशंस एग्री हुए थे अमंग द स्टेट्स, वो 22 रिकमेंडेशंस जो है वो हमारा जिसे कहते हैं गाइडिंग लाइट बन गया आगे के काम करने के लिए। और ये भी सही है कि पिछले 2 साल में टीम वाटर जो सेंटर और स्टेट से बना हुआ है, इन 22 रिकमेंडेशंस को, जिसको अभी हमने 6 सेशंस में बांटा हुआ है ग्रुप बना के, इन 22 रिकमेंडेशंस पे बहुत काम हुआ है। जस्ट फॉर इंस्टेंस हम लोगों ने ये कहा था कि वाटर इरिगेशन को हम लोगों को बेहतर प्रबंधन करना चाहिए, कि हम लोग प्रोजेक्ट्स बना के छोड़ देते लेकिन उसका प्रबंधन किस तरह से होता है हमें पता नहीं है। इस वक्त इस कॉन्फ्रेंस में हम एक टूल पेश करेंगे जिसके द्वारा हर राज्य सैटेलाइट डेटा के जरिए अपने हर कमांड का एक असेसमेंट कर सकता है कि किस तरह से वो अपने जो लक्ष्य है, वो बेंचमार्क्स जो है उसको कर रहे हैं कि नहीं कर रहे हैं। और हम हर स्टेट का एक फैक्ट शीट शेयर करेंगे कि आपके जो प्रोजेक्ट्स है वो कहाँ हैं, वो 90% परफॉर्मेंस दे रहे हैं या 60% परफॉर्मेंस दे रहे हैं। तो ये काम पिछले 2 साल में हुआ है। उसके अलावा हम लोगों ने फ्लड प्लेन जोनिंग पे काम किया है, हम लोगों ने इंटीग्रेटेड वाटर रिसोर्स मैनेजमेंट में काम किया है कि जो पानी को हम टुकड़े टुकड़े में देखते हैं, एक ग्राउंड वाटर मैनेजमेंट है, एक फ्लड प्लेन जोनिंग है, उसको किस तरह से इकट्ठे ले आए और उसका किस तरह से एक साइलोज ब्रेक करके एक कॉम्प्रिहेंसिव गवर्नेंस का तरीका आगे बढ़ाएं। ग्राम पंचायतों में वाटर बजटिंग, ये भी मुहिम आगे बढ़ा है। मुझे ये भी कहने में हर्ष है कि वाटर स्टोरेज में जल संचय जन भागीदारी कि किस तरह से हम कम्युनिटीज़ को इकट्ठा ले आके उनके रिसोर्सेज को यूज़ करके जल का संचयन को बढ़ा सकते हैं, इसका एक बड़ा मुहिम छिड़ा गया है और उसमें सारे स्टेट साथ आ रहे हैं। फाइनली ऑल्सो राज्यों के बीच में जो समझौते हैं उसमें भी हम लोगों के कुछ ब्रेक थ्रू मिले हैं। आपको पता है केन बेतवा पहला था जिसमें मध्य प्रदेश और उत्तर प्रदेश के बीच समझौता हुआ था। उसके अभी राजस्थान और मध्य प्रदेश के बीच में मॉडिफाइड पीकेसी लिंक पे समझौता हुआ है। तो ये जो राज्यों के बीच में वाटर कोऑपरेशन है, इसमें भी हम आगे बढ़ रहे हैं। पर पानी ऐसा क्षेत्र है जो हम काम करें वो कम है। और ये मैं कहना चाहती हूँ कि राज्यों में, अलग अलग राज्यों में, अलग अलग एरिया में बहुत ज़बरदस्त काम हुआ है जिससे हम भारत सरकार ही नहीं बाकी राज्य भी सीख सकते हैं। सो ऑल्सो I'd like to say that what we also think that we learn better from the successes and failures of others grappling with similar problems. अगर भारत सरकार बोले ये गाइडलाइंस है, ये हमारा काम है, उससे बेहतर ये है कि कोई राज्य बोले ये हमारा प्रॉब्लम था, इसको हमने इस तरह से सुलझाया है, तो उससे बाकी राज्य भी प्रेरित हो सकते हैं। और मुझे उम्मीद है कि फिर एक दूसरे से बात करके हम ये जो कनेक्शंस है इसको आगे बढ़ा सकते हैं, ताकि हम
हर बार जो व्हील है उसको रीइन्वेंट ना करना पड़े हमें. Now, so I sincerely believe that this conference, where we have the water leaders from almost all the states of the country, will help us move forward towards a water secure India. Finally, I'd just like to flag कि एक major challenge क्या है हमारे सामने. हमारा major challenge है sustainability. Sustainable use of groundwater, so that हमने जल जीवन मिशन का जो भी इंफ्रास्ट्रक्चर क्रिएट किया हुआ है वो इंफ्रास्ट्रक्चर हमारे साथ लंबे वक्त तक इफेक्टिव हम यूज कर सकें. Sustainable use, ensuring river health so that our river systems are protected and we are also less susceptible to flooding. Better maintenance of our dams and big water infrastructure. Sustainability, 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 यही हमारा सबसे बड़ा चैलेंज है. डैम्स और कैनाल सिस्टम्स का मेंटेनेंस बना के भूल जाते हैं और उनका डिटेरियोरेशन होता रहता है. बहुत सारे राज्य ने बहुत बढ़िया काम किया है इन सारे एरियाज में और ये हम अगले 2 दिन तक शेयर करेंगे ताकि हम लोग इसको आगे ले जा सके. आखिर में आप सबको स्वागत करते हुए और इस कॉन्फ्रेंस के शुभारंभ में मैं एक और छोटी सी बात कहना चाहती हूँ. वो ये है कि हमारे लिए टाइम कीपिंग बहुत ज़रूरी है. तो हम रिक्वेस्ट करेंगे कि जो वक्तव्य है उसको ब्रीफली एंड इफेक्टिवली कहा जाए और ये कह के हम आप सबको नमस्कार करते हैं.